So students, in the last lecture, what we have discussed, PN junction diode forward bias. Okay. The circuit arrangement for studying the forward bias characteristics of the diode we have studied in our previous lecture. And today we will be studying about the reverse bias. What is reverse bias, students? So for a diode in the reverse bias, the current is usually very small of the amount of microamperes and is almost constant, and that current is known as the reverse saturation current. Now you can see in the graph, students, you can see in the graph in the reverse bias, this current you see, the current is plotted on the this y-axis and voltage is plotted on this x-axis. So if you are reading current here, so the current is very small in the range of microamperes. This is known as the reverse saturation current up to this point VBR. What is this point VBR? As we increase the reverse voltage, how do we apply the reverse voltage? How do we apply the reverse voltage? So this is the PN junction diode. Okay. If we connect the negative of the battery terminal to the P side of the diode and positive to the N side of the diode, then we say that this PN junction diode is reverse biased. So we are talking about the reverse biasing. Forward biasing we have already talked in the previous lecture. In the reverse bias, the reverse saturation current is very low up to VBR. What is VBR? At VBR, the breakdown occurs. Breakdown of the reverse biased diode is occurring and breakdown current is there. You see the breakdown current is almost constant. Okay. We add at this particular voltage, the current is almost constant. The voltage is almost constant and the current is increasing. You see, current you read in the y-axis, the current is keep on increasing, but the voltage remains at this point. Voltage remains at this point. That means the Zener diode where it is connected across, the voltage will be remaining the same even if the current is changing. Okay. So this property is utilized for the Zener diode for voltage regulation. ठीक है. Now PN junction diode को forward bias करते हैं, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में करंट फॉरवर्ड बायस में करंट दिखाता है, बराबर. मतलब इट इज acting as a on switch. PN junction diode in the forward mode is acting as a on switch because it conducts fully, ठीक है, in the forward mode. And in the forward bias resistance is very low as compared to the reverse bias resistance. When we reverse bias the PN junction diode, its reverse bias resistance is very low. And now this property, when the diode is forward bias, it is conducting, and when the diode is reverse bias, it is not conducting or the resistance is very high. This property is utilized for making the rectifiers. We will be studying in the next sections. Okay. So for the diodes, resistance has to be defined, and we define the resistance by dynamic resistance. How we say that it is a dynamic resistance? If we see this figure, what is the resistance at this point? ओम्स लॉ में क्या पढ़ते थे आप? स्ट्रेट लाइन होता था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई रेजिस्टेंस होता था, बराबर है. यहाँ पे ये पोर्शन जो है इतना स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे तो आप पढ़ लेंगे. यहाँ पे आप जो है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई आप पढ़ सकते हैं. डेल्टा वी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और डेल्टा आई करस्पॉन्डिंगली आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इधर साइड में, और डिवाइड करके रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है. लेकिन ये कर्ड पाथ है, यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो इस पॉइंट पे अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो दैट विल बी वेरिंग देन दैट प्रीवियस वैल्यू. इस वैल्यू से वेरी करेगा. यहाँ पे जो टेंजेंट होगी, जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी यहाँ पे, दैट वैल्यू ऑफ दैट टेंजेंट, वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट will give us the
रेजिस्टेंस एट दिस पॉइंट, सपोज कि रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। लेट मी टेक माय पेन। ये पॉइंट, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसका स्लोप निकाल लेंगे। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई से निकाल लेंगे। तो अगर हम ये ट्राइंगल बनाते हैं तो अपने को, ये ट्राइंगल हमने बनाया तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, डेल्टा वी मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल्टा आई मिलेगा। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई क्या हो जाएगा, दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसकी टेंजेंट बनाएंगे, और इसकी टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट विल टेल अस अबाउट द रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है यहाँ रेजिस्टेंस दूसरा है और यहाँ रेजिस्टेंस दूसरा है। इसका मतलब इट्स रेजिस्टेंस इज चेंजिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड देयरफॉर द नेम इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस, राइट। देयरफॉर द नेम इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, इसको जो है, इसके ऊपर एक सवाल बनाया है, देखिए इन्होंने क्या, द VI characteristic of a silicon diode is given, calculate the resistance of the diode at a point दिया है, ID is equal to 15 मिली एम्पियर, तो ये ID is equal to 15 एम्पियर, करंट इन द डायोड 15 मिली एम्पियर पे, ठीक है। एंड बी वोल्टेज इन द डायोड -10 वोल्ट पे, जब वोल्टेज डायोड का -10 वोल्ट हो तब रेजिस्टेंस निकालना है, दो टाइम पे। तो जब करंट इन 15 मिली एम्पियर है तो हम देख रहे हैं कि ये दिस इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो इसका स्लोप निकाल लेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो 15 के बाद में 20 और 15 के पहले 10 पॉइंट्स ले लिया हमने, और इसका स्लोप हमने निकाला। तो 10 के ऊपर हमने करस्पॉन्डिंग वोल्टेज पढ़ा 0.7, और 20 के ऊपर करस्पॉन्डिंग वोल्टेज पढ़ा तो 0.8 है। तो डेल्टा भी कितना आया हमारा, डेल्टा भी आ गया 0.8 माइनस 0.7। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग डेल्टा आई कितना आया, 20 -10 मिली एम्पियर है, 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। तो ये फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक है, फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक, तो फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक में रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ द फॉरवर्ड बायस कितना हो गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, तो 0.1 divided by 10 milliampere, it comes out to be 10 ohm. ठीक है, now let us see B point, calculate the resistance at VD is equal to -10 volt। तो VD is equal to -10 volt यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्राफ में, ये रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक है। तो VD is equal to -10 पे हमेशा करंट जो है वो -1 माइक्रो एम्पियर है, देखिए इट विल कीप ऑन गोइंग। ठीक है, -10 वोल्ट पे कितना है, -1 माइक्रो एम्पियर करंट चल रही है, थोड़ा और आगे जाएंगे तो भी -1 ही चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जो वोल्टेज और करंट का रेशियो है वो अपने को बता देगा रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज द रेशियो, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो एम्पियर गिव्स अस 1 into 10 to the power 7 ohm। Now you see the reverse bias resistance is very much high than as compared to the forward bias resistance। ये एग्जांपल आपको ये बताता है। Now what are the application of a junction diode as a rectifier? जैसा कि मैंने बोला था, when the diode is forward bias condition it conducts, when the diode is in the reverse bias condition it does not conduct, it acts as an open circuit। इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हैं रेक्टिफायर बनाने के लिए, डायोड एज ए रेक्टिफायर। ये क्या होता है रेक्टिफायर, if the alternating voltage is applied across a diode the current flows only in that part of the cycle when the diode is forward biased। कहने का मतलब है कि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये देखिए अप्लाई किया हुआ है, ये डायोड के अक्रॉस, ये डायोड जो दिखाया हुआ है यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ट्रांसफार्मर का एक प्राइमरी है, ये कोर है, और ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से हमने जो है ये डायोड कनेक्ट किया है, और इसके साथ डायोड के साथ एक रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है, इसलिए लोड रेजिस्टेंस RL लगाया हुआ है, इसके अक्रॉस अपने को आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और ये वापस, तो जब ये पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल आएगा, यू सी दैट माय कर्सर, ये 0 वैल्यू है, उसके बाद ये पीक आया, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का आ रहा है,
तो ये जो है पॉइंट ए उस टाइम पे क्या होगा, इस जगह पे आ रहा है पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए पे पॉजिटिव हाफ साइकिल का पीक आ रहा है, तो डायोड जो है कैसा हो जाएगा, दिस डायोड विल बिकम द फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और कंडक्ट करेगा और रेजिस्टेंस आरएल में अपने को मिल जाएगा। For this part of the waveform, positive half cycle, the diode conduct and resistance के across अपने को ये मिल जाएगा waveform in the same shape. See? Now, as soon as this negative half of the AC voltage is reaching this point A, तो this point A का potential जो है negative हो जाता है and therefore automatically this diode becomes reverse bias. एंड रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस अभी हमने देखा बहुत हाई होता है, इसका मतलब है इट विल नॉट कंडक्ट, द करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द आरएल, और आरएल में करंट जीरो होगी। यू सी द करंट इन द आरएल इन दिस पोर्शन इज जीरो। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट पॉजिटिव पीक ऑफ द एसी, and this next positive peak of the AC also passes through this forward bias diode, PN junction diode, and the output is obtained in the RL. You see output is obtained in the RL, and the next negative half cycle is cut again because of the reverse biasing of the diode. This is known as the half wave rectification. ये जो प्रोसेस मैंने बताया आपको, ये क्या है, दिस इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए कि जो रिवर्स बायस हो रहा है, ये जो वोल्टेज एसी जो है इसको रिवर्स बायस कर रही है डायोड को, तो इसको डिजाइन ऐसा होना चाहिए पीएन जंक्शन डायोड का कि इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है इट मस्ट बी वेरी वेरी हाई देन अप्लाइड वोल्टेज। अदरवाइज क्या होगा कि अगर इसका रेटेड ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होगा डायोड का, तो रिवर्स बायस में ये ब्रेकडाउन कर जाएगा और खराब हो जाएगा। समझ में आया? टू प्रोटेक्ट द डायोड फ्रॉम द रिवर्स ब्रेकडाउन, ये जो डायोड का जो डिजाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये हाई होना चाहिए। ठीक है, सफिशिएंटली हाई होना चाहिए। तो ये तो हो गया इनपुट वोल्टेज। इनपुट यहाँ पे अप्लाई किया गया है सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर से, और आउटपुट आरएल के थ्रू मिल रहा है, तो आउटपुट का वेव फॉर्म ये है। ये तीनों फिगर जो है बोर्ड के एग्जाम में बनाने का और जो मैंने प्रोसेस बताया वो एक्सप्लेन करने का आता है। बराबर है? सो एक सिंगल डायोड कैन बी यूज्ड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये बात समझ में आपके आ गई होगी। इसको प्रैक्टिस करना है फिगर बनाने का। लेकिन अब जो दो डायोड यूज करते हैं, जैसे फिगर 14.19a में दो डायोड यूज किया हुआ है। एक डायोड यहाँ पे है, देखिए डायोड D1 है और ये डायोड D2 है। ठीक है, when two diodes are used then we can get the full wave rectifiers. ठीक है, so we can get the rectified voltage corresponding to both the positive as well as the cycle, therefore it is known as the full wave rectifier. ठीक है, कैसे कनेक्शन करते हैं इसमें, n sides of the diodes are connected together and output is taken between this common point of diode and the midpoint of the secondary of the transformer. p side जो है, जो डायोड है D1 एंड डायोड D2, इसका जो p साइड है पॉइंट A और पॉइंट B, ये p साइड्स हैं, इनको कनेक्ट किया है सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर से, और जो इसके n साइड हैं उनको कॉमन कर दिया है, और इनके n साइड्स कॉमन करने के बाद में लोड रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, विच इज कनेक्टेड, अदर एंड ऑफ द लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द ट्रांसफार्मर। इसको बोलते हैं सेंटर टैप। ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के सेंटर में ये कनेक्टेड है और इसको बोलते हैं सेंटर टैप, राइट? एंड द सेंटर टैप इज ग्राउंडेड, यू सी। तो विद रेस्पेक्ट टू ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, इसके अबाउट वी विल सी द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड अबाउट दिस वी विल सी द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, इसलिए इसको सेंटर टैप बोला जाता है। ठीक है, इसको डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। बराबर है? तो लेट अस सी द, ये सेंटर टैप आपको समझ में आ गया। लेट अस सी द वर्किंग ऑफ दिस। अभी देखिए, when the center tap is here and a waveform is at this end and the positive half cycle is coming, so the positive half cycle will make this diode D1
forward bias. The positive half cycle, the waveform at A has been shown. This is the positive half cycle. This positive half cycle is reaching at point A. The diode D1 conducts and the current will flow through green line. मैंने green line से बताया है ना, इस तरह current flow करेगी. देखिए diode will be conducting, D1 is conducting and a current flowing through the RL. RL के थ्रू हमें आउटपुट लेने का है. ठीक है, तो ये ग्रीन लाइन से दिखाया इस तरीके से जाएगा, यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगा करंट, यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगा और ये ऐसे होते हुए ऐसे जाएगा. सर्किट इज कंप्लीट. तो दिस इज द करंट फ्लो. एज सून एज दिस नेगेटिव पार्ट कम्स, ये जो नेगेटिव पार्ट इधर आता है, तो उस वक्त जो है सेंटर टैप होने की वजह से यहाँ पे वेव फॉर्म का शेप, वेव फॉर्म एट ए इस तरीके से होता है और इस दूसरे एंड पे बी पॉइंट पे वेव फॉर्म का शेप कैसा होगा, ये 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे होगा, जस्ट अपोजिट. जब इसका पीक आएगा तो इसका ट्रफ आएगा, जब इसका ट्रफ आएगा तो इसका पीक आएगा. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉजिटिव वेव फॉर्म है उस टाइम में इधर अप्लाई हो गई, ये दूसरे D2 पे अप्लाई हो गई. पॉजिटिव वेव फॉर्म is applied in the second half of the cycle. The positive waveform will be applied here because it is 180 degree out of phase. Therefore, the positive waveform will be applied at D2 and the D2 will conduct. अब D2 conduct होगा तो सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगी, रेड लाइन से मैंने बताया. ये देखिए ऐसे गया और लोड में से गया, लोड में से Y से फिर इधर आया और इधर आके फिर यहाँ से ऊपर से निकल गया, टैप में आया, सेंटर टैप से होते हुए यहाँ पे आया और यहाँ से होके फिर से डायोड आ गया. तो इस तरीके से करंट फ्लो करेगी. ये दोनों बार में देखिए, इन बोथ द करंट्स आई हैव शोन, ये ग्रीन वाला एरो भी नीचे है और रेड वाला एरो भी नीचे है, मतलब आरएल में यूनी डायरेक्शनल करंट मिलती है. लोड रेजिस्टेंस में यूनी डायरेक्शनल करंट आपको मिल रही है. बराबर है. कहने का मतलब है कि फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल हो तो ऊपर वाला डायोड कंडक्ट कर जाएगा और निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो नीचे वाला डायोड कंडक्ट कर जाएगा. इन बोथ द केसेस दोनों ही हाफ साइकिल अपने को मिल जाएगा आउटपुट लोड रेजिस्टेंस में और यूनी डायरेक्शनल मिलेगा. तो ये देखिए दिखाया, D1 की वजह से ये मिला और दूसरा नेगेटिव हाफ जो है D2 की वजह से आ गया, फिर तीसरा D1 की वजह से आ गया और चौथा D2 की वजह से आ गया. नाउ वी सी द फुल वेव इज रेक्टिफाइड. द फुल एसी वेव, फुल एसी वेव क्या होगी, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ मिलके फुल वेव होगी. नाउ द फुल वेव इज रेक्टिफाइड. पहले क्या हो रहा था, आधा पोर्शन कट हो रहा था तो एफिशिएंसी डाउन हो गई थी 50%. ठीक है, तो यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल करंट जो है अपने को मिलती है. ठीक है, तो ये रेक्टिफिकेशन एक्शन हो रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से इसका वर्किंग भी समझाने को आता है, ये डायग्राम बनाने को आते हैं आपको. यू हैव टू प्रैक्टिस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर. हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. ठीक है, अभी जो रेक्टिफाइड वोल्टेज होती है ये हाफ साइनोसॉइड्स के फॉर्म में होती है. यूनिडायरेक्शनल है लेकिन ये स्टेडी वैल्यू, आप देख रहे हैं कि ये रिपल्स इसके अंदर है, ये रिपल नेचर का है ना. यूनिडायरेक्शनल तो है, निगेटिव में कुछ नहीं जा रहा है, सब पॉजिटिव में मिल रहा है, लेकिन स्टिल इट इज नॉट ए डीसी, इट इज नॉट ए प्योर डीसी. प्योर डीसी होगी तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा आएगा. ठीक है, तो इसको जो है ये रिपल्स को हटाने के लिए, इसके फ्रीक्वेंसी इफेक्ट्स को हटाने के लिए, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, वी विल आइदर कनेक्ट ए कैपेसिटर इन अक्रॉस इट, वी विल आइदर कनेक्ट कैपेसिटर अक्रॉस द लोड. ये जो लोड है इसके अक्रॉस यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे, या फिर सीरीज कनेक्शन ऑफ आर एंड एल, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर आरएल सर्किट लगाएंगे. ठीक है, दोनों चीज लगा सकते हैं. इन दोनों को हम फिल्टर बोलते हैं. इन दोनों को क्यों बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर सर्किट लगाने पे या आरएल सर्किट लगाने पे ये एसी की जो रिपल इफेक्ट है उसको निकाल देता है, तो इसको फिल्टर बोलते हैं. तो रोल ऑफ द कैपेसिटर इन फिल्टरिंग यहाँ डिस्कस किया हुआ है. तो कैपेसिटर किस तरीके से काम करता है, सपोज कैपेसिटर इनपुट फिल्टर ये लगा हुआ है, देखिए कैपेसिटर इनपुट फिल्टर लगा है लोड के अक्रॉस. ठीक है, तो ये जो रिपल यहाँ से रेक्टिफायर से जो रेक्टिफाई होके आ रहा है, फुल वेव रेक्टिफाइड करंट आ रही है, तो उसके रिपल्स को ये खा जाएगा
और आगे अपने को लोड में प्योर डीसी मिल जाएगा इस तरीके का। ये प्योर डीसी मिल गया, रिपल इफेक्ट इसका खत्म हो गया। बराबर है। ये इनपुट कहाँ का है? ये इनपुट जो है यहाँ रेक्टिफायर का आउटपुट नहीं है, ये इनपुट है, यहाँ का एसी इनपुट है। रेक्टिफायर क्या देगा? फुल वेव रेक्टिफाइड देगा। यहाँ पे एक्स और वाई पे क्या मिलेगा? फुल वेव रेक्टिफाइड। ऐसा ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, सब ऊपर मिलेगा। जो वेव फॉर्म ऊपर दिखाया था वो लगा कैपेसिटर के अक्रॉस, तो उसका रिपल इफेक्ट ये कम कर देगा। कैसे कम करेगा? ठीक है, कैसे कम करेगा? इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का इम्पीडेंस कितना होता है? 1/ओमेगा c होता है, 1/2πfc। f इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अगर जो है इम्पीडेंस इसका इनफाइनाइट हो जाए, मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाए, इनकमिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाए, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा एंड फुल करंट विल बी ऑब्टेन्ड थ्रू द लोड। इसके थ्रू करंट पास नहीं होगी। लेकिन because the ripple effect is there in the current obtained through the rectifier, ripple effect है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से क्या होगा कि दिस ZC will have certain minimum value। फ्रीक्वेंसी इज मोर, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो इसका जो है वैल्यू इतना कम होगा इम्पीडेंस का, एंड ZC will be less। ZC कम हो जाएगा तो इसका इम्पीडेंस कम हो जाएगा और इसका तो कुछ एनफ इम्पीडेंस है, तो इसका इम्पीडेंस हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कम हो जाता है। इसके लिए क्या होता है कि इधर से वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली करंट पास हो जाती है एंड द डीसी करंट रिमेन्स हियर एट द आरएल, और वो जो है इधर से आउटपुट में अपने को मिल जाती है रेक्टिफाइड डीसी। ठीक है, कहने का मतलब है कैपेसिटर इनपुट फिल्टर बोलते हैं इसको। इसमें लार्ज कैपेसिटर्स आर यूज्ड। ठीक है, and the output voltage is obtained by using the capacitor input filter is nearer to the peak voltage of the rectified voltage। उसका जो आउटपुट वोल्टेज है कितना होता है? रेक्टिफाइड वोल्टेज के पीक वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर क्या होता है? पहले कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, ठीक है, फिर रिमेन्स चार्ज टू द पीक वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट। रेक्टिफाइड आउटपुट के पीक वोल्टेज तक वो चार्ज बना रहता है। अगर लोड है तो लोड के थ्रू डिस्चार्ज होगा, अगर लोड नहीं है तो वो चार्ज ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, इसी तरह से आरएल फिल्टर भी होता है, उसको यहाँ डिस्कस नहीं किया गया है। लेट अस डिस्कस सम स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड स्पेशल पर्पस का मतलब है एक होता है जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या है? It is a special purpose semiconductor diode which is designed to operate under reverse bias condition in the breakdown region। और इसका खास यूज है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है? आपके घर में देखा होगा कि इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं और वोल्टेज जो आती है 220 वोल्ट आती है। नाउ इक्विपमेंट्स आर डिजाइन टू वर्क ऑन द 220 वोल्ट, लेकिन अगर 240 या 250 वोल्ट किसी फॉल्ट की वजह से आ गई तो क्या होगा? आपके इक्विपमेंट डैमेज हो जाएंगे, फ्रिज टीवी वगैरह सब जो है खराब हो जाएंगे। अब तो इससे लिए इनबिल्ट रेगुलेटर अभी लगने लगा है। पहले फ्रिज के ऊपर एक डब्बा जैसा रेगुलेटर अलग से आता था। वो क्या करता है? अगर 240 वोल्ट बाई चांस बाहर से आ गया, 250 वोल्ट आ गया, फिर भी आपके इक्विपमेंट को जाने वाला वोल्टेज 220 वोल्ट ही रखेगा, क्योंकि वहां पे लगा है जेनर डायोड। वहां पे लगा है सर्किट के अंदर जेनर डायोड। जेनर डायोड का वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। जैसा कि हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी, रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक क्या देखी? देखिए रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक, जेनर डायोड वर्क्स इन द रिवर्स बायस। ठीक है, तो उसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए, रिवर्स वोल्टेज के लिए डिजाइन करते हैं। यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड द वोल्टेज विल बी कांस्टेंट, करंट इज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इवन इफ द करंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, द वोल्टेज will be constant across the zener diode। ये प्रॉपर्टी वोल्टेज रेगुलेटर में हमारे काम आ जाती है। ठीक है, तो जेनर डायोड क्या? इट इज फैब्रिकेटेड हैवीली डो बोथ पी एंड एन साइड ऑफ द जंक्शन। ठीक है, इसको बनाते हैं हैवीली डोपिंग से, बनाते हैं, हैवी डोपिंग की जाती है। डिप्लेशन रीजन बहुत पतला होता है, 10⁻⁻6 मीटर का, एंड देयरफॉर E इज इक्वल टू V अपॉन D। फॉर्मूला पढ़ा है ना?
डी कम हो गया, डेप्थ उसकी जो विड्थ है कम हो गई कैपेसिटर की, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, एंड देयरफॉर तो ये क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन विल बी एक्सट्रीमली हाई इवन फॉर अ वेरी स्मॉल रिवर्स बायस वोल्टेज ऑफ द 5 वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगी तो क्या होगा, electric field at the junction is very high, and when the breakdown voltage occurs, जैसे जेनर के अक्रॉस ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गया, तो लार्ज चेंज इन द करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट चेंज इन द रिवर्स बायस वोल्टेज। जेनर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा और करंट जो है बढ़ती चली जाएगी, करंट फ्लो करती चली जाएगी। ठीक है, जेनर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं। ठीक है, रिवर्स करंट किसकी वजह से होती है, जेनर में रिवर्स करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स पी साइड पीएन जंक्शन में पी साइड में माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो वो एन साइड में जाते हैं। ठीक है, और एन साइड में माइनॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं, वो पी साइड में इंजेक्ट होते हैं। ठीक है, ये जंक्शन पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉसिबल हो पाता है इस तरह का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, रिवर्स करंट जो है सेटअप होना पॉसिबल है अगर जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन इज वेरी हाई, high enough to pull the valence electron from the host atoms on the p side which is accelerated to n side। मतलब माइनॉरिटी कैरियर को भी खींच लेता है, माइनॉरिटी कैरियर को जो है पी साइड से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और एन साइड से होल्स को खींच लेता है और दोनों को जंक्शन पे ले आके मिक्सअप कर देता है और करंट जनरेट कर देता है। इस प्रोसेस को जो कि फील्ड की वजह से होती है, इसको हम इंटरनल फील्ड एमिशन या फील्ड आयनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁶ वोल्ट पर मीटर की लगभग जनरेट हो जाती है जंक्शन के ऊपर। तो ये जेनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से यूज बताया है। ये जो है इनपुट वोल्टेज है अनरेगुलेटेड आ रहा है, ये जो है हाई वोल्टेज भी हो सकता है, लो वोल्टेज भी हो सकता है। दोनों केस में ये देखिए जेनर डायोड रिवर्स बायस मोड में लगाया गया अक्रॉस द लोड। ये लोड का मतलब है आपका फ्रिज, टीवी या कोई भी कॉस्टली इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिसको आप नहीं चाहते कि वो डैमेज हो जाए। ठीक है, तो इसके अक्रॉस आपको चाहिए 220 वोल्ट, तो इसको आप जो है इस तरीके से सेट कर देंगे कि 220 वोल्ट ये देता रहेगा। बराबर है, इसके अक्रॉस जब यहाँ से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हाई हो जाएगा, वोल्टेज हाई होने से क्या होगा, इसके अक्रॉस तो 220 वोल्ट ही रहेगा, एंड वट एवर इज द वोल्टेज ड्रॉप, एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रॉप दैट विल बी अकरिंग थ्रू आर एस, दैट विल बी अकरिंग थ्रू आर एस वोल्टेज ड्रॉप। और ये जो जेनर डायोड है, जेनर डायोड 220 वोल्ट इसके अक्रॉस कांस्टेंट रखेगा। ये इसका वर्किंग है। अगर वोल्टेज कम हो जाता है, इफ द वोल्टेज इज रिड्यूस्ड, जैसे 220 वोल्ट चाहिए, 220 वोल्ट से कम वोल्टेज भी हो गया, लो वोल्टेज भी हो गया, तब भी ये 220 वोल्ट यहाँ पे मेंटेन करता है और वोल्टेज ड्रॉप अकर होगा यहीं पे। वोल्टेज ड्रॉप विल बी अकरिंग ओनली अक्रॉस द आर एस। दिस वे the capacitor, this way the Zener diode in the reverse bias mode across the load maintains the voltage across the load, and इस वजह से जो है लोड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, any increase or decrease in the input voltage result in the increase and decrease of the voltage drop across the RS without any change in the voltage across the Zener diode। Zener diode के across voltage कभी change नहीं होता है। ठीक है, so it is acting as a voltage regulator। Let us see what is saying in the example 14.5। 14.5 में क्या कहता है, in a Zener regulated power supply, Zener diode with VZ reverse breakdown voltage 6 वोल्ट दिया है रेगुलेशन के लिए, लोड करंट दिया है 4 मिली एम्पियर, अनरेगुलेटेड इनपुट 10 वोल्ट दिया हुआ है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस RS। अगर ये इस तरीके के VZ6 वाले जेनर डायोड को हमें यूज करना है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, लोड करंट 4 मिली एम्पियर होनी चाहिए, तो जो है सीरीज रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जेनर करंट जो होती है लगभग 5 गुना 6 गुना ज्यादा लोड करंट की होनी चाहिए।
मतलब आई जेड कितना होना चाहिए, आई जेड मीन्स करंट थ्रू द जेनर, इसके थ्रू जो करंट पास होनी चाहिए इस लोड में जो पास हो रही है उसकी 5 गुना होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहता है 4 मिली एम्पियर करंट जो है पास होती है लोड से, तो कहता है भाई हमें 20 जेनर से 20 मिली एम्पियर पास करानी है, बराबर है। तो 20 मिली एम्पियर यहाँ और 4 यहाँ पे, तो यहाँ से कितना आ रहा है करंट, इस जगह से करंट 24 मिली एम्पियर आ रहा है, ठीक है। 24 मिली एम्पियर करंट वहां से आ रहा है टोटल, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया आर एस के अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप हो गया 10 वोल्ट, तो अनरेगुलेटेड इनपुट आ रहा है, -6 वोल्ट अक्रॉस द जेनर डायोड, ये 10 हो गया टोटल, -6 4 वोल्ट हुआ, बराबर है। तो 4 वोल्ट अक्रॉस द आर एस लगा हुआ है, और करंट कितनी आई इसमें, करंट 24 मिली एम्पियर आ रही है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा आर एस, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, फॉर्मूला लगा दीजिए, 4/24 इंटू 10⁻³ तो 167 ओम, मतलब 150 ओम के आसपास का आर एस आप चूज कर लेंगे, तो दैट विल वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस in which the Zener breakdown voltage is 6 volt and load current is to be maintained at 4 milliampere and for the unregulated input of 10 volt, value of the series resistance will be 150 ohm, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि करंट थ्रू द जेनर शुड बी सफिशिएंटली लार्जर देन द करंट थ्रू द लोड, इज इट क्लियर। So we will have certain introduction about the optoelectronic devices. What are the optoelectronic devices, my dear friends? Optics plus electronics makes optoelectronics, right? So optoelectronic junction devices are those devices which contains the diodes in which carriers are generated by photons, means photo excitation होता है इसमें, उनको optoelectronic device बोलते हैं। तो पहले टाइप की आती है इसमें फोटो डायोड्स। फोटो डायोड्स क्या होंगे, फोटो डायोड्स वो होंगे जो डिटेक्ट करेंगे फोटो मतलब कि फोटोन ऑफ लाइट्स को डिटेक्ट कर लेंगे, उनको फोटो डायोड बोलेंगे। दे डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल, फोटो डिटेक्टर की तरह यूज करते हैं। दूसरे टाइप के एलईडी होंगे, एलईडी आप लोग यूज करते हैं, एलईडी बल्ब यूज करते हैं अभी तो, ठीक है। स्मॉल एलईडीज आर आल्सो यू आर यूजिंग, लाइट एमिटिंग डायोड्स which convert electrical energy into light, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है और पावर कंजम्पशन इनका बहुत कम होता है। तीसरे टाइप के फोटोवोल्टेइक डिवाइस आते हैं। फोटोवोल्टेइक डिवाइस क्या है, लाइट ऑप्टिकल रेडिएशन मींस लाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, दैट मींस सोलर सेल। तो 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस आर देयर which are known as ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। इनके बारे में पहले आता है फोटो डायोड। ये क्या है भैया, फोटो डायोड is a special purpose PN junction diode that is fabricated with a transparent window to allow the light to fall on that diode. You can see this is a transparent window on which the light is falling and the photons of energy h nu are coming. So photons will be coming here and they will be generating electron holes pair in this region. Okay, this region is near the depletion region. Okay, near the depletion region electron holes pair will be generated. So a transparent window जो है वो allow करती है light को आने के लिए, और खास बात ये है कि it is photodiode is operated under the reverse bias. You see reverse bias is applied. Reverse bias is applied in such a manner that you see this is the minus and this is the plus. So this is PN junction. So P is connected to negative side and this plus is connected to the N side, and therefore this is in the reverse bias condition. Okay. So in the reverse bias condition it is operating and electron hole pairs are generated if the incoming light energy is sufficient, is having the sufficient energy to overcome the energy gap of the semiconductor. Okay. So generation of the electron hole pairs near the depletion region यहाँ पे जो है takes place, यहाँ पे होता है generation of electron hole pairs. Okay. And होता क्या है कि electric field at the junction
at the depletion region is such that the electron and holes which are generated are separated now. Electron and holes which are generated is separated. Okay, electrons are collected on the n side and holes are collected on the p side, and that separation gives rise to an EMF. जो separation हो गया electron और holes का, that gives rise to an EMF. Ultimately, if the external load is connected, the current will flow. तो जो फोटो करंट अपने को मिलेगा फोटो डायोड से, दैट फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी. इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी अगर हम जो है बढ़ा देंगे तो फोटो करंट अपने को ज्यादा मिलेगा. ठीक है, तो ये जो फोटो डायोड है, इट इज यूज्ड एज अ फोटो डिटेक्टर टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल्स. You see the I characteristic has been shown for the different values of the photo current. I1, I2, I3, I4, where I4 is highest, I1 is the least, and that graph is drawn. Okay, that is IV characteristics of the photodiode. डिफरेंट इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी में I4 सबसे ज़्यादा है, I1 सबसे कम है, उसके हिसाब से ये करेक्टरिस्टिक प्लॉट किया गया है. You have to remember this. Now in example 14.6 it is asking an interesting question. Let us see. The current in the forward bias is known to be more than the current in the reverse bias. ठीक है, तो करंट इन द फॉरवर्ड बायस जो है उसमें ज्यादा होता है, रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर की रेंज का होता है. तो फिर अपने को फोटो डायोड में अगर करंट ज्यादा चाहिए तो हम फॉरवर्ड बायस में ही क्यों नहीं ऑपरेट कर लेते हैं, रिवर्स बायस में क्यों ऑपरेट करते हैं. तो इस आंसर इसमें दिया है क्या कि सपोज कर लीजिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास में है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर देन द नंबर ऑफ होल्स in n type semiconductor. And if we illuminate this, if we put a light on that of any radiation, if you put a radiation on that, then the excess electron holes pair will be generated and the number of electron will be equal to number of holes. So in the illuminated condition, if n dash and p dash are the electron and hole concentrations at a particular illumination, if n dash and p dash are the electron and hole concentration, we see that n dash is equal to n plus delta n, p dash is equal to p plus delta p, where delta n is the increase in the electrons due to illumination, delta p is the increase in the holes due to illumination. So delta n and delta p दोनों तो same होंगे. Now let us see the total sample. N dash will be very bigger than the p dash. ठीक है, number of electrons will be very much more than the number of holes, and therefore we see the fractional change in the majority carriers. तो delta n upon n जो है बहुत कम होगा बनिस्पत की डेल्टा पी अपॉन पी के. डेल्टा एन अपॉन एन विल बी वेरी लेस देन डेल्टा पी अपॉन पी. इसके लिए अपने को फोटो इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा. इसलिए फोटो इफेक्ट देखने को तभी मिलेगा जब हमारा रिवर्स बायस करंट होगा और माइनॉरिटी कैरियर डोमिनेटेड होगा. माइनॉरिटी कैरियर डोमिनेटेड रिवर्स बायस करंट होगा तो ये फोटो इफेक्ट्स आसानी से मेजरेबल होगा और फ्रैक्शनल चेंज इन द फॉरवर्ड बायस करंट अपने को आसानी से मिलेगी. ये जो फ्रैक्शनल चेंज होता है दैट इज मॉनिटर्ड एंड दैट फ्रैक्शन, इसकी वजह से अपने को क्या होता है, रिवर्स बायस में ऑपरेट करना पड़ता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोटो डायोड स्टूडेंट्स. तो फोटो डायोड के डिस्क्रिप्शन के बाद में नेक्स्ट वी विल टेक अप इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, गुड बाय. Quick Deal, a marketplace to sell anything. Apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick Deal.